Next, I mean, then we will see how to, configure these things, how to do the practicals, how to deploy a VPN tunnel with सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन. तो इसमें एक टर्म आता है पीकेआई, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर. तो बेसिकली ये पीकेआई क्या होता है, पहले तो हम देख लेते हैं कि व्हाट इज अ डिजिटल सर्टिफिकेट. सो एज यू कैन सी, digital certificate provides digital identification for authentication. A digital certificate includes information that identifies a device or user, such as name, serial number, company, department, or IP address. Like आप अपना पासपोर्ट यूज करते हो, राइट, टू प्रूव योर नेम दैट दिस इज हु यू क्लेम टू बी. सिमिलरली डिवाइसेस भी, लाइक इस केस में लेट्स से हमने R1 को एक सर्टिफिकेट दे दिया है वेल नोन CA से, तो R1 will use that certificate to prove its VPN peer that I am R1 or I am 12111. Similarly, R3 will prove its own certificate to R1 to show that I am 23111. It's more like a digital identity, right? Then SCA, if we talk about a CA, we also call it trust point. It is basically managing certificate requests and issuing certificates to participating network devices. For example, in our case, let's say we are configuring R2 as a CA server. I'll show you how to configure a router as a CA server. रियल टाइम में आपको राउटर भी मिल जाएगा एज अ CA सर्वर, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम विंडोज सर्वर को भी बना लेते हैं हम लोग CA सर्वर. ठीक है, तो या what is a CA? CA is actually a trust point, or we can say it's a well-known entity that manages certificate request and issue certificate to participating network devices. Okay, all right. After this, if we talk about a public key infrastructure term, so this is just a term that provides certificate management to support security protocols such as IPsec, SSH and secure socket layer. ठीक है ना, तो ये बेसिकली जो आपका पूरा डिप्लॉयमेंट होता है, लाइक रिक्वेस्टिंग फॉर सर्टिफिकेट, इशूइंग अ सर्टिफिकेट, देन अगेन सर्टिफिकेट इज आल्सो वैलिड फॉर सम स्पेसिफिक टाइम. So request after expiration, requesting for a new certificate or providing a new certificate. So these complete infrastructure is called PKI, public key infrastructure. And if we talk about the components of PKI, so here we need peers communicating on a secure network. Okay, then at least one certificate authority that grants and maintains certificate, example DigiCert and GoDaddy. Then digital certificate, which contains information such as certificate validity period, identity information, encryption keys that are used to secure communication, and signature of the issuing CA. So basically what is going to happen is R1 will request for a certificate. So actually R1 should have its own public and private key pairs, because those public and private key pair it is going to authenticate, it is going to get signed by its CA. इट्स मोर लाइक कि आपका अपना बेसिक कुछ नाम तो होना ही चाहिए, राइट. आप अपना एक नाम रखोगे तभी तो आप जाओगे पासपोर्ट बनाने कि ये मेरे फोटो और मेरे नाम को ये चीज बाइंड कर दो, राइट. सिमिलरली एक बेसिक इसके पास अपना आइडेंटिटी होना चाहिए, IP एड्रेस एंड देन बेसिक थिंग्स लाइक सीरियल नंबर. those information it will send to CA will sign that certificate with its private key, then will send back to R1. अब अगर वो सर्टिफिकेट साइन हो रखा है R2, लेट से CA है जो हमारा, उसकी प्राइवेट की से, तो वो डिक्रिप्ट कैसे करेगा R1? तो उसके लिए R1 ऑल्सो नीड्स CA's रूट. CA का मतलब R1 को CA का भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा. तो CA का अपना खुद का एक सर्टिफिकेट होता है, दैट इज सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट. तो सबसे पहले क्या करता है, CA हमेशा अपना ही सर्टिफिकेट देता है R1 को, उसके बाद R1 का आइडेंटिटी सर्टिफिकेट देगा. ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे दो टर्म्स होते हैं, लाइक रूट सर्ट एंड आइडेंटिटी सर्ट. Okay, so root cert means certificate of CA server. Root cert means what? Certificate of CA server. Then identity certificate means certificate of the device issued by CA server. Okay, तो ये दो टर्म होते हैं. ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशन आई विल शो यू लाइक कैसे ये आपका R1 and R3 will request for root certificate and identity certificate. Then further they will only use their identity certificate to represent their identity.
ओके, ऑलराइट। तो यस, एंड फाइनल थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म। तो बेसिकली यहाँ पे हम HTTP यूज कर लेंगे सो दैट यू नो आर दिस R1 कैन सेंड अ रिक्वेस्ट टू R2, R2 कैन ग्रांट द सर्टिफिकेट टू R1. So distribution mechanism could be LDAP or HTTP. So in our case, we'll be using HTTP as a distribution mechanism. All right. So after this basic theoretical introduction about this digital certificate and PKI, now let us do this. Let's configure a side-to-side tunnel between R1 and R3. अभी तक मैंने आपको पॉलिसी बेस्ड और राउट बेस्ड दोनों ही टनल बनाने बता दिए हैं, ठीक है। तो you can use any of those methods because we need to understand this certificate thing, right? So कोई भी टनल हम डिप्लॉय कर सकते हैं लाइक पॉलिसी बेस्ड या फिर राउट बेस्ड, बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ टू कॉन्फ़िगर ए राउटर एज अ CS सर्वर, फर्स्ट थिंग। ओके, तो ये दो चीजें हमें देखनी है। उसके बाद कॉन्फ़िगर ए साइड टू साइड टनल विद सर्वर, ठीक है। और सर्टिफिकेट मिल गया, देन आफ्टर दैट वी जस्ट नीड टू यूज दैट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो उसके लिए कोई अलग एज कॉन्फ़िग नहीं है। ओके, लेट मी शो यू ऑल दिस थिंग्स। तो देखो, सबसे पहले एक यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि R1 R3 जो क्लाइंट होंगे, हमारे क्लाइंट इन द सेंस सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करेंगे CS सर्वर से, R2 CS सर्वर, सो दोज आर क्लाइंट्स R1 एंड R3। तो इनके बीच में आपका टाइम होना चाहिए सिंक्रोनाइज्ड। टाइम क्या होना चाहिए? सिंक्रोनाइज्ड, बिकॉज यू नो सर्टिफिकेट हैज अ वैलिडिटी पीरियड, राइट। अब पता चला आपके R2 पे चल रहा है सन 2002 फॉर एग्जांपल, एंड R1 पे चल रहा है 2022। अब अगर इसने एक साल के लिए वैलिड कोई सर्टिफिकेट इसको दिया R1 को, तो वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा 2002 से 2003 तक। R1 is already in 2022, so that is already expired. So we need to ensure that the time must be synchronized. And as I told you कि जो आपकी सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट आएगी, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो HTTP पे होगा, so R2 must be listening for HTTP. We have to enable HTTP service on R2, ठीक है। तो देखते हैं, अभी के लिए R1 पे कोई कॉन्फ़िग नहीं है, जस्ट बेसिक IP एड्रेसिंग एंड एक डिफॉल्ट रो व्हाट्स ISP। कोई टनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, लेट मी शो यू। ओके, नथिंग। एंड इस पे भी कोई कॉन्फ़िग नहीं है, जस्ट IP एड्रेसिंग। सो लेट मी डू दिस, लेट मी मेक इट एज CS सर्वर। ये हो गया हमारा CS सर्वर। एंड फर्स्ट लेट मी सेट इट्स क्लॉक। सो क्लॉक सेट, let's say it's for example 12th of December 2020, and date is, let's time is, let's say 12 o'clock, 12 19 minutes 12 seconds. So 12th of December 2020. Okay, now we check show clock, it is this one. Now we need to configure it as an NTP server, so we need to run this command NTP master. As soon as we run this command NTP master, R2 is working as a NTP server. अभी हमने इसको CS सर्वर नहीं बनाया, अभी मैंने इसको NTP सर्वर बनाया बिकॉज आई टोल्ड यू कि हमें टाइम सिंक करना पड़ेगा। तो R1 पे चलते हैं एंड हियर वी विल से कि आपका NTP सर्वर कौन है, 12112। तो इसकी जो क्लॉक है R1 की, दैट विल बी सिंक्रोनाइज्ड विद R2। सिमिलरली R3 पे भी वही करेंगे हम कि आपका NTP सर्वर कौन है बता देंगे, 23112। तो अगर आप R1 की क्लॉक देखोगे, डू शो क्लॉक, तो इस पे भी टाइम वही आ गया आपका 12 दिसंबर 2022, जो भी हमने टाइम दिया था। सिमिलरली R3 पे भी, ठीक है, टाइम सिंक हो गया। अब हम R4 को बनाएंगे एज अ CS सर्वर। तो उसके लिए आप यहाँ पे कमांड चलाओगे, crypto PKI सर्वर एनी नेम, लेट से CA, ठीक है। अब आप यहाँ पे दोगे इशूअर नेम, कि जो भी ये सर्टिफिकेट इशू करेगा उसमें नेम क्या होगा, लेट से
कॉमन नेम हो गया डिजीसर्ट, ऑर्गेनाइजेशन हो गई लेट्स से डी जी फॉर एग्जांपल, एंड कंट्री इज लेट्स से यूएस। तो जो भी सर्टिफिकेट ये इशू करेगा उसमें ये आपको कॉमन नेम और ये देखने को मिलेगा। उसके बाद लाइफ टाइम अगर आप देना चाहते हो सर्टिफिकेट का, तो जो सीए सर्टिफिकेट है उसका लाइफ टाइम क्या रखना है, और ये जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट देगा सामने वाले को उसका लाइफ टाइम क्या रखना है। तो जैसे मेरे को रखना है सीए का जो लाइफ टाइम है वो मेरे को रखना है डेज में। तो लेट्स से मैंने दे दिया 365 डेज। ओके। और लाइफ टाइम ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय दिस सर्टिफिकेट सर्वर, लाइफ टाइम जो सर्टिफिकेट देगा उसका लाइफ टाइम लेट्स से मेरे को रखना है 180 डेज फॉर एग्जाम्पल। डन। Then after this, enrollment URL, sorry, grant auto. Grant auto in the sense whenever it will receive a request, सर्टिफिकेट लेट से R1 ने रिक्वेस्ट भेजी कि मेरे को सर्टिफिकेट दो, तो R2 ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा। अगर आप ये कमांड नहीं चलाओगे देन आपको मैनुअली यहाँ पे आके सर्टिफिकेट को ग्रांट करना पड़ेगा। फाइनली आप कहोगे यहाँ पे नो शट, इट विल आस्क फॉर ए पासवर्ड, लेट से मैंने पासवर्ड दे दिया सिस्को 123। डन। अब आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई लॉक। अब इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो लेट मी शो यू, से आप टच पॉइंट सी में जाना चाह रहे हो, ठीक है। बेसिकली ये पासवर्ड का पर्पस यहाँ पे सच है नहीं कुछ, बट दिस इज हाउ दिस सी ए सर्वर ऑन सिस्को आईओएस वर्क्स, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप एडी पे चीज बना रहे हो तो आपको एक पासवर्ड चाहिए होता है ग्रांट करने के लिए सर्टिफिकेट, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे डू शो क्रिप्टो पीकेआई सर्वर, तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है स्टेटस डिसेबल्ड बिकॉज एचटीटीपी सर्वर इज डिसेबल्ड। तो हमने कमांड चला दी आईपी एचटीटीपी सर्वर। दिस इज हाउ वी इनेबल एचटीटीपी सर्विस ऑन सिस्को आईओएस, and now you will see that your certificate services are also enabled. Okay, status is enabled, server configuration is locked। ठीक है। अब इसका सर्टिफिकेट अगर आपको देखना है, शो क्रिप्टो पीकेआई सर्ट, ये इसका खुद का सर्टिफिकेट है, रूट सर्टिफिकेट जो हो गया R1 और R3 के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सीए सर्वर भी अपना सर्टिफिकेट देता है क्लाइंट्स को, ठीक है, ताकि वो अपना खुद का सर्टिफिकेट जो है वो अंडरस्टैंड कर लें। क्योंकि R2 जब सर्टिफिकेट देगा R1 को उसका, तो उसको साइन करके देगा प्राइवेट की से, तो उसको R1 डिक्रिप्ट कैसे करेगा, इस रूट थ्री की हेल्प से, रूट सर्टिफिकेट की हेल्प से। तो ये देखो कितने दिन के लिए वैलिड है, 1 ईयर के लिए, ठीक है। हमने टाइम लाइफ टाइम दिया था। अब चलते हैं हम R1 पे, और यहाँ पे हम बताएंगे ट्रस्ट पॉइंट, क्रिप्टो पीकेआई ट्रस्ट पॉइंट, कोई भी आप नेम दे तो लेट्स से TP1। ओके। एनरोलमेंट यूआरएल आप बताओगे कि आपको सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट के लिए जाना कहाँ पे है, 12112 पे जाना है। डन। एंड सब्जेक्ट नेम जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें आपको सब्जेक्ट नेम क्या चाहिए, लेट्स से कॉमन नेम इज इक्वल टू R1, कंट्री इज इक्वल टू इंडिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको, मैं आपको बताया था कि R1 को एक अपनी प्राइवेट एंड पब्लिक की पे चाहिए होगा, तो लेट मी जनरेट दैट क्रिप्टो की जनरेट RSA मॉड्यूलस 1024 लेवल L1, क्योंकि यही कीज ये अपने CSS सर्टिफिकेट्स में साइन करवाएगा, राइट। So now again we will go to this TP1 and here we will say RSA key pair L1। Okay, now first we will request for root certificate, so crypto PKI authenticate TP1, जो हमारा टच पॉइंट है उसको हम पहले ऑथेंटिकेट करेंगे। इट्स मोर लाइक इट इज रिक्वेस्टिंग फॉर रूट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डू शो क्रिप्टो PKI सर्ट, तो यहाँ पे देखो ये सीए का रूट सर्टिफिकेट जो मैंने आपको सीए पे भी दिखाया था वो R1 पे आ चुका है। ओके। नाउ वी विल से कि crypto PKI enroll TP1, enroll in the sense it is going to ask for its identity certificate। यहाँ पे अब ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मांगेगा, ठीक है। तो आप पासवर्ड लेट्स से इसको
Now it's asking, do you want to include serial number? You can say yes or no. It's up to you. Let me say no. IP address subject name में नहीं चाहिए. Certificate request yes. ठीक है. Certificate received from certificate authority. So if you see here, do show crypto PKI certificate. लास्ट टाइम हमें केवल एक सर्टिफिकेट दिखा रहा था, अभी आपको दो दिखाएगा. ये आपका हो गया सीए का सर्टिफिकेट और ये हो गया R1 का अपना सर्टिफिकेट. सी कॉमन नेम R1, कंट्री इंडिया. ये कितने दिन के लिए वैलिड है? 6 महीने के लिए एज पर अवर कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, 180 डेज के लिए. इशूअर कौन है? डिजीसर्ट है. ठीक है, तो ये आपका हो गया R1 का अपना सर्टिफिकेट. सिमिलरली हम R3 पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और R3 को भी एक सर्टिफिकेट दिलाएंगे. फर्दर ये सर्टिफिकेट हम यूज कर लेंगे टू ऑथेंटिकेट द पेयर इन आईपीसेट टनल. ठीक है, तो एक काम करते हैं, R3 को भी फटाफट से सर्टिफिकेट दिला लेते हैं. क्रिप्टो की जनरेट RSA मॉड्यूलस 1024 लेवल L2 क्रिप्टो PKI फर्स्ट पॉइंट TT RSA की पेयर L2 सब्जेक्ट नेम कॉमन नेम इक्वल टू R2 कंट्री इंडिया. देन पासवर्ड अगर आप यहीं पे दे दोगे देन इट इज नॉट गोना आस्क ड्यूरिंग सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट. RSA की पेयर दे दिया, सब्जेक्ट नेम दे दिया, एनरोलमेंट URL कहाँ जाना है एनरोलमेंट के लिए? 2311 पे. डन. सो फर्स्ट थिंग क्रिप्टो PKI ऑथेंटिकेट टू आस्क फॉर रूट सर्टिफिकेट. ठीक है, रूट सर्टिफिकेट आ गया. देन एनरोल टू आस्क फॉर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट. सीरियल नंबर चाहिए? नहीं चाहिए. IP एड्रेस चाहिए? नहीं चाहिए. अब अगर आप ये कमांड चलाओगे देन आपको ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा. देखो अभी क्या दिखा रहा है, ये पेंटिंग दिखा रहा है. अब सर्टिफिकेट आ गया इसके पास. ठीक है, तो ये सीए का सर्टिफिकेट हो गया. ये हो गया इसका अपना सर्टिफिकेट. ठीक है, अब ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी कैसे बनाते हैं सिस्को राउटर को और क्लाइंट से इनिशिएट कैसे करते हैं रिक्वेस्ट और सर्टिफिकेट देखते कैसे हैं. इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम R1 और R3 के बीच में टनल बनाएंगे सेम सर्टिफिकेट को यूज करते हुए. थैंक यू. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.